Hi, very good morning to all of you. I'm Dr. Seethal Sharma, and welcome to Logically Legal Studies. So I've been recording this video after a while. Actually, I wasn't keeping well. So I know that I have finished in the last lecture, section 5 and 6 of Specific Relief Act. Or last class ke andar, I told you that we will be recording one session on adverse possession. So here it is. This session will be covering section 5 and 6 of Specific Relief Act with respect to a particular point, that is adverse possession. And then we are also going to link up section 25, 26 and 27 of the Limitation Act. You know, ये तीनों sections 25, 26 and 27 of Limitation Act ये ऐसे sections हैं जिसमें students को हमेशा problem आती है. I mean, attempt करना question तो बहुत दूर की बात है. जब हमें बेयर एक्ट प्रोविजंस को ही इंटरप्रेट करना होता है तब भी प्रॉब्लम होती है. सो लेट्स जस्ट सी सिंपली कि इन सेक्शंस का आपस में कनेक्शन क्या है. और हमें पता है जनरली दैट एडवर्स पोजेशन एज अ जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है. Before I move on to the session, since I've been receiving lot many queries from the students with respect to how to write an answer, right? या हमें कब तैयारी अब शुरू करनी चाहिए. So I would like to address one very important issue here. See, we all know this that 3-year mandatory rule आने के बाद सबका जो रिविजन एक पैटर्न होता है, शेड्यूल होता है, वो बहुत ज्यादा हिल चुका है, right? But we need to understand this that अगर हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो उस चीज को भी हमें 2 साल लग जाते हैं आराम से, बिकॉज देन वी हैव टू रिवाइज द थिंग्स और उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते करते. तो वैसे भी 1.5 या 2 ईयर जो है वो हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं. ठीक है. सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि अगर आपके 2 साल अभी पड़े हुए हैं आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होने के लिए, तो आप उस टाइम को प्लीज यूटिलाइज कीजिए. नो डाउट यू आर सपोज टू गो टू द कोर्ट, बट अपने इवनिंग्स या अपने वीकेंड्स को इस तरीके से सॉर्ट करें कि आप इन टच रहें रिविजन के साथ एंड योर मेंस आंसर राइटिंग. And for mains answer writing, I'm also, running a test series batch. जिसकी information, I will be given in the description of this video. जहाँ पे आप जो है वो सारी डिटेलिंग चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से I run this batch. So basically, just highlighting this one more point here with respect to the batch, because I was receiving lot many queries with respect to the test series, and which is inclusive of pre as well as main point of view. So what I do is if the student gets enrolled, so I prepare a schedule of that student. और हर एक student का जो है वो अपना schedule prepare होता है revision का, and it is not a class thing. It is like individual test and individual evaluation, जो बहुत important होती है, right? Now, what do you understand by individual evaluation? Suppose you have given you one syllabus for the test and you have revised those topics. I will give you that test, and then what I will do is I am going to evaluate that, right? So evaluation ke andar, if I didn't like your one para, if I didn't like your 3 lines, if I didn't like the answer, I write the answer. That's the kind of the model answer. So ultimately what happens is, suppose if you have given, आपने एक सब्जेक्ट के जो है वो 10 टेस्ट दे दिए, 15 दे दिए, and there is no limit on the number of the tests. This is something that is I decide that एक बच्चे को किस तरीके से जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कितना उसका सिलेबस होगा एंड कितनी बार रिपीट करना है. दैट्स माय प्रेरोगेटिव. तो उसमें क्या होता है कि आपका जो सारा सिलेबस होता है वो एक तरीके से जॉट डाउन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द टेस्ट ओनली. तो अल्टीमेटली आपको वो सारे बल्कि अपने नोट्स नहीं पढ़ने पड़ते हैं. अगर आप वो क्वेश्चन और जो आपने आंसर लिखे हैं और जो इवैल्यूएट हो चुके हैं आप वही पढ़ लेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ. तो इस तरीके से रिविजन भी होती है और जो बल्कि नोट्स है उसमें से आप बहुत सारी चीजें जो है वो क्रिस्प तरीके से अपने आप एक तरीके से मेंस के लिए पहले ही तैयारी कर लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर, बिकॉज लिखा तो वहां पे उतना ही जाना. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना. तो ये सारा कुछ डिसाइफर हो जाता है व्हेन यू जॉइन अ टेस्ट. So this was one thing I wanted to address with you because I was receiving lot many queries, and yes, I was hoping कि whenever I'm going to make the next video, I will share this setup. बाकी details के लिए you can check with me. I'm sharing the contact numbers also, right? आप उसके ऊपर अगर आपको कोई और information चाहिए तो उसके ऊपर आप अपनी information पूछ सकते हैं. ठीक है. Now going back to section 5 and 6 of SRA. So in the last class, we have discussed section 5 and 6 of SRA. Basically, they deal with one type of remedy, that is
recovery of specific immovable property. And we know that section 6 जो है that is a special remedy, क्योंकि उसका एक अपना cause of action है. सिर्फ आपको dispossession prove करनी है, previous possession prove करनी है, title discuss नहीं होना है यहाँ पे, and then you are able to get your possession back. लास्ट क्लास के अंदर हमने लैंडलॉर्ड और टेनेंट का केस किया था, और अब हम करने जा रहे हैं एडवर्स पोजेशन एज अ कॉन्सेप्ट. सो आई विल बी लिंकिंग अप सेक्शन 5, 6 ऑफ एसआरए and section 25 to 27 of limitation. Now let's see quickly. See, when we talk about section 5 and 6 of SRA, ठीक है, ये हमने काफी डिस्कस कर लिया. तो अब एडवर्स पोजेशन हम देख लेते हैं कैसे करेंगे. जिसके लिए okay. So here it is, adverse possession. Now, what do you understand by the term adverse possession? Now, adverse possession, the word adverse, it refers to something which is contradictory, something which is not consistent with your possession, right? Something which is hostile. तो एडवर्स मतलब कोई भी अगर पर्सन आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट अगर कोई भी राइट्स कॉन्ट्राडिक्टरी यूज कर रहा है, आपके अगेंस्ट राइट यूज कर रहा है, तो दैट रेफर्स टू एन एडवर्स पोजेशन. नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्स पोजेशन? इसका मतलब ये होता है, सिंपल अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट इज दैट व्हेन वन पर्सन इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी फॉर क्वाइट लॉन्ग पीरियड, then that person acquire some kind of a title over that property, और वो टाइटल जो है वो आप कोर्ट में जाके अपना क्लेम कर सकते हैं, राइट? नाउ लेट्स टेक अप सेक्शन 25, 26 and 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट फर्स्ट, एंड देन आई विल मूव ऑन टू एसआरए. एक बार एडवर्स पोजेशन आपको समझ आ जाएगी तो फिर हम एसआरए की तरफ चलेंगे. सो आई एम गोइंग टू डू फर्स्ट 25 ऑफ लिमिटेशन एक्ट. बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो बच्चे पूछते रहते हैं दैट इसका एग्जैक्टली इंटरप्रिटेशन क्या है बेयर एक्ट में. सो आई एम रीडिंग सेक्शन 25 ऑफ लिमिटेशन एक्ट. लेट्स सी दिस. This is acquisition of easements by prescription. Now you need to understand to section 25 where this talks about easements. Easements की example जैसे right of way है, right to light and air, ये सारी easements होती हैं. तो section 25 कहता है कि जब आप एक light and air इंजॉय करते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है 20 years, तो आप उसके ऊपर राइट एक्वायर कर लेते हैं. कैसे? बाय प्रिस्क्रिप्शन, मतलब बाय यूज. और कल को कोई राइट आपका जो है वो इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है, बट ये राइट आप एक्वायर कैसे करते हैं? लेट्स सी सेक्शन 25. आई एम रीडिंग फ्रॉम द बेयर एक्ट फर्स्ट. लेट्स सी वेयर द एक्सेस एंड द यूज ऑफ लाइट और एयर to or for any building have been peaceably enjoyed therewith as an easement. जब आपने लाइट एंड एयर को इंजॉय किया है, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग में रह रहे हैं, किसी भी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, आपने वो लाइट एंड एयर इंजॉय किया है पीसफुली, कामली, राइट, एज एन ईजमेंट और एज अ राइट, और उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं आई है, विदाउट इंटरप्शन. कितने टाइम तक एंजॉय किया है आपने? 20 years तक. And where any way or the water course or the use of any water or any other easement, whether affirmative or negative, has been peaceably and openly enjoyed by any person. तो कोई भी सपोज आपने एक रिवर को एक्सेस किया है, फॉर एग्जाम्पल द प्लेस वेयर यू आर सिचुएटेड, वो प्लेस थोड़ी सी शहर से दूर है, तो मेन शहर जाने के लिए यू जस्ट रन अ फेरी और ओवर दैट रिवर. उस लैंड को अगर आपने यूज किया है, राइट, पीसफुली किया है, ओपनली किया है, किसी से छुपा के नहीं किया है, राइट, by any person who's claiming title thereto as an easement and as of right without any interruption for 20 years. तो right of way over land, right of way एक तरीके से आप कह सकते हैं over water course, right of light और right of air, आपने अगर enjoy किया है for a period of 20 years without interruption and without any openly you have done it, and कोई भी आपने hide करने की कोशिश नहीं की है, right? The right to such access and use of light or way, air, water course, use of water or the other easement shall be absolute and indivisible. तो वो जो राइट है आपका वो क्या बन जाएगा? 20 साल तक एंजॉय किया है आपने उसको, वो एब्सोल्यूट बन जाएगा और इनडिफिसिबल बन जाएगा. मतलब आपके इस राइट को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है.
राइट। बट हमें ये 20 years टाइम पीरियड जो है वो किस तरीके से देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन जो इसका सारा आता है 1, 2 एंड फर्दर 2 and 3 एंड फर्दर एक्सप्लेनेशन। लेट्स सी दिस। Each of the set period of 20 years shall be taken to be a period which is ending within 2 years next before the institution of the suit wherein the claim to which such period relates is contested. मैं दूसरा भी साथ में ही पढ़ रही हूँ। Where the property over which a right is claimed under subsection 1 belongs to the government, instead of 20 years, you are supposed to read 30 years. ठीक है, that was substituted. Now let's see how to calculate this 20 years time period. तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी में ही आती है, कैसे करना है। अब एक चीज आप समझिए, नो डाउट इन्होंने कहा है कि ईजमेंट आपने एंजॉय की है फॉर अ पीरियड ऑफ 20 years, और अगर वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो 30 years। तो क्या 20 साल बस जैसे ही पूरे हो जाएंगे, क्या आपको ये राइट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट द केस कि 20 years पूरे हो गए और ये राइट मुझे मिल गया ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है। तो क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि ये वाला राइट जो आप कोर्ट में मांग रहे हैं वो एक सूट में इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या एक सूट का वो पार्ट बनना चाहिए, should be involved in a suit। ठीक है, उसमें वो इस तरीके से राइट वो डिस्कस हो रहा है, और वो जो सूट है वो कब फाइल होना चाहिए? वो होना चाहिए फाइल, जैसे सपोज ये आपका 20 years का टाइम पीरियड चल रहा था। सपोज दिस वाज योर टाइम पीरियड 1 to 20। ठीक है, अगर ये सूट जो है वो फाइल हुआ है विद इन 2 years, ठीक है, जब आपका 20 साल का टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, उसके विद इन 2 years, जब ये मतलब सपोज 18 years हो रहे थे, 20 years जब वो खत्म हो रहा था, तो विद इन 2 years यू हैव फाइल्ड सूट। तो देन ओनली दिस बिकम्स योर एब्सोल्यूट राइट और द इंडिफिजिबल राइट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, जस्ट बिकॉज आपके 20 साल कंप्लीट हो गए तो बाय द एफ्लक्स मोड, बाय the termination of 20 years, this right is not going to become absolute. This right is only going to become absolute जब आपने 20 साल खत्म हो गए थे और उसके लास्ट विद इन 2 years यू हैव फाइंड द सूट। नाउ लेट्स सी, सपोज देयर इज वन पर्सन, उसको इंटरप्रिटेशन दूसरे तरीके से करो। नाउ इमेजिन देयर इज वन पर्सन हु इज इन द प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ 50 years। ठीक है, उसने 50 years तक लाइट एंड एयर जो है वो एंजॉय किया है। तो आपको ये इंटरप्रेट नहीं करना कि 50 years तो उसको हो गए तो दैट मीन उसका इजमेंट का राइट जो है वो एब्सोल्यूट या इंडिविजिबल बन गया। दिस इज नॉट द इंटरप्रिटेशन। तभी मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि 20 साल खत्म हो गए और यहाँ 50 साल आपको हो गए हैं तो ये राइट आपका एब्सोल्यूट बन जाएगा। नो, एज पर 2 सबसेक्शन 2, हमारे लिए 20 साल कब होंगे? तो सपोज ही इज देयर फॉर 50 years। ठीक है, तो 50 years के बाद उसने सूट फाइल किया। ठीक है, तो वहां से जिस दिन उसने सूट फाइल किया हमने वो देखना है कि क्या वो जो जिस दिन उसने सूट फाइल किया है क्या वो उसके 20 years के टाइम पीरियड में आ रहा है। बिकॉज हमने देखना है कि जब उसने सूट फाइल किया क्या उस टाइम पे 20 years हो रहे हैं, वो वाली डेट जो है दैट इज कमिंग विद इन 2 years when the 20 years time period was completing or not. This is the exact interpretation. I'll just read it out one more time. Each of the said period of 20 years shall be taken to be a period ending within 2 years next before the institution of the suit. तो 2 years जब आपने सूट इंस्टीट्यूट किया उससे पहले जो 2 साल है आप देखेंगे कि क्या उसके 20 साल वहां पे कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं है। अगर हो रहे हैं तो देन इट राइट दिस राइट बिकम्स एब्सोल्यूट और इंडिफिजिबल। तो सपोज अगर आप 50 साल के बाद सूट फाइल कर रहे हैं, आज सूट फाइल कर दिया 50 years के बाद, तो आपका जो 20 years टाइम पीरियड है वो सूट फाइल करने से हम देखेंगे कि उसके जो 2 साल पहले आ रहे हैं क्या उसमें आपके 20 years कंप्लीट हो रहे हैं। तो the answer is yes because you have already completed 50 years. So this is how we are supposed to see. So it does not become 20 years पूरे और आपका ये राइट आंसर। दिस इज नॉट द केस। जब भी सूट फाइल करोगे उससे 2 साल नीचे जाके आपने देखने की 20 साल मेरे कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं। दिस इज वन। इसमें कुछ एसेंशियल्स होते हैं डिवोर्स पोजेशन के, ये सेम ही रहेंगे जब हम सेक्शन 5 एंड 6 ऑफ एसआरए भी पढ़े, राइट। तो सबसे पहले एसेंशियल क्या होता है, जैसे सपोज
पीसफुल एंजॉयमेंट। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीसफुल एंजॉयमेंट? पीसफुल एंजॉयमेंट का मतलब होता है कि आप इंजॉय कर रहे थे लाइट, एयर, वाटरवे, राइट ऑफ वे, और आपको किसी भी तरीके से जो है वो ओनर से या किसी और पर्सन से इंटरप्शन जो है वो फेस करनी नहीं पड़ी है। बेसिकली उस पर्सन से हु वाज एंटाइटल्ड टू दैट, उससे आपने कभी भी जो है वो इंटरफेरेंस फेस नहीं की है। ठीक है। जब हम बात करते हैं इंजॉयमेंट की, ओपनली इंजॉय, तो मतलब आपने बहुत पीसफुली कामली इस चीज को एंजॉय किया है, राइट? एंड ओपनली इंजॉयड मतलब जैसे सपोज अगर कहते हैं राइट टू लाइट और एयर यू हैव इंजॉयड ओपनली, तो अगर आपने वो 20 साल तक इंजॉय किया है तो वो दिखता है, दिस इज समथिंग दैट इज इम्प्लाइड। अगर आपके घर के आगे जो है वो किसी भी तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सो इट इज something that is generally presumed that you have enjoyed this light or air for a period of 20 years। या राइट ऑफ वे अगर आपने एक्सेस किया है तो आपका कोई एक्ट था उस जगह से जाने का और आने का, तो दैट इज समथिंग दैट जस्ट जहां से हम ये प्रिज्यूम कर रहे थे, इट इज इम्प्लाइड दैट यू हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर राइट फॉर अ पीरियड ऑफ 20 years। ठीक है। ओके। एज ऑफ राइट या एज द ईजमेंट, जब हम बात करते हैं यू हैव एंजॉयड दिस राइट ऑफ वे, राइट ऑफ लाइट और एयर, यू हैव एंजॉयड दिस एज एन ईजमेंट, राइट? यू हैव एंजॉयड दिस एज ऑफ राइट। सपोज इमेजिन करो, हम ये वर्ड दोनों क्यों यूज कर रहे हैं, एज ऑफ ईजमेंट एंड एज ऑफ राइट? मतलब सपोज एक प्रॉपर्टी आप ही की है, राइट? और उस प्रॉपर्टी पे आप राइट ऑफ वे एक्सरसाइज कर, तो दैट इज नॉट द ईजमेंट। तो जो ईजमेंट होती है दैट इज ऑलवेज अटैच टू समवन एल्सेस प्रॉपर्टी, जो आप राइट अपना एक्सरसाइज करते हैं। तो सपोज जिस प्रॉपर्टी के आप ओनर हैं वहां पे थोड़ी ना आप ईजमेंट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। आप ईजमेंट जो है वो दूसरी की प्रॉपर्टी से ही इंजॉय करते हैं हमेशा। तो दैट इज व्हाई वी से दैट यू हैव enjoyed दिस राइट एज एन ईजमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर कोर्स की बात करें, राइट ऑफ वे की हम बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो राइट आपने एक्सरसाइज किया है किसी और लैंड के ऊपर। ठीक है, सर्वियंट हेरिटेज के ऊपर, जिसके लिए इंजॉय करते हैं उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट हेरिटेज। तो जहां पे आप हैं वो हो गया डोमिनेंट हेरिटेज। आप किसी की लैंड के ऊपर राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो हो गया आपका सर्वियंट हेरिटेज। तो ईजमेंट, वो राइट को जो है वो आपने ओपनली इंजॉय किया, पीसफुली इंजॉय किया एंड एज एन ईजमेंट यूज किया है। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही लैंड के ऊपर वो राइट एक्सरसाइज कर रहे थे, राइट? देन इट इज नॉट एन ईजमेंट। सो व्हेन यू एक्सरसाइज दिस राइट ओवर समवन एल्सेस प्रॉपर्टी ओनली देन इट इज एन ईजमेंट। ठीक है। ओके। ठीक है। नाउ लेट्स सी, जब हम मैंने आपको सबसेक्शन 2 के बारे में बताया कि उसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन, तो मैंने जैसे बताया ना आपको कि 20 years नहीं देखना, जैसे कंप्लीट हो गया दैट डजंट मीन इट बिकम्स एब्सोल्यूट, राइट? तो जरूरी क्या होता है? जरूरी होता है कि आप एक जगह पे 50 साल तक इंजॉय कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, बट बाय चांस कोई इंटरप्शन आ गई कहीं से। ठीक है। सो सपोज you were there in this house for a period of 50 years, you were enjoying this, right? And there is some interruption from B and you are A, तो आपने सूट फाइल कर दिया। ये जरूरी है बिकॉज ये राइट जो है वो क्लेम करने के लिए किसी सूट का पार्ट होना चाहिए। तो जिस दिन आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है उससे 2 साल पहले हम देखेंगे कि क्या आपके 20 साल पूरे हो रहे हैं, उस टाइम पीरियड में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर सपोज, interruptions, and then you are supposed to prove that you have enjoyed this for a period of 20 years। ठीक है। ओके। तो आई थिंक ये मैंने आपको करा ही दिया, दैट्स मोर देन इनफ। One more thing. Suppose you were staying in the property for a period of 50 years and then there is some type of interruption. Interruption आ गई but आपने कोई action नहीं ली। ठीक है, you have not filed a suit. And basically what has happened कि आपने सूट ही फाइल नहीं किया तो वो 2 साल से ऊपर का टाइम पीरियड हो गया। Then your right will not become absolute. तो इंटरप्शन से विद इन 2 years आपको वो सूट फाइल करना है एंड देन यू आर सपोज टू प्रूव दैट यू वर इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब यू वर एंजॉयिंग दैट प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ 20 years। ठीक है। सो पुटिंग इट सिंपली, just because you have completed by relaxing on your property the period of 20 years, this right is not a win। इंटरप्शन आई, आपने एक्शन लिया, विद इन 2 years
आपने जो है जिस दिन आपने सूट फाइल किया उस इंटरप्शन से उससे पहले आपके 20 इयर्स का टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो सपोज जैसे आज इंटरप्शन है, ठीक है, देयर इज एन इंटरप्शन टुडे, सो यू विल फाइल अ सूट। यहाँ पे हम देते हैं सूट, आपने फाइल कर दिया। ये जो सूट की डेट है ना, इसके हम देखेंगे कि आपके 20 साल हुए या नहीं। तो इससे 2 साल पहले उस टाइम पीरियड के अंदर आपके 20 इयर्स कंप्लीट होने चाहिए, ओनली देन यू विल गेट दिस। आई होप दिस इज क्लियर। और अगर इंटरप्शन निकल गई और आपने 2 साल के अंदर सूट फाइल नहीं किया तो देन इट इज नॉट, then this will be something that your right will not have become absolute or indefensible. Right? So this is acquiring the easements by way of prescription. तो 25 जो है वो हमेशा easements के साथ जो है वो डील करता है। 26 के ऊपर आते हैं हम। Let's see. Okay. Now we move on to section 26, if this is clear. Now again, section 26 जो है, this is something that has been enacted in order to protect the interest of reversioners, right? Reversioners कौन होते हैं? Reversioners basically are those persons जिनके पास प्रॉपर्टी आएगी बाद में। पहले उनसे पहले देयर इज वन पर्सन हु इज गोइंग टू एंजॉय द प्रॉपर्टी फॉर सम टाइम फॉर लाइफ, और उसके बाद में उसकी डेथ के बाद में उनके पास प्रॉपर्टी आएगी, उनको हम बोलते हैं रिवर्शन, जिनके पास प्रॉपर्टी जो है वो बाद में रिवर्ट करती है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज 26। Exclusion in favor of reversion of servient tenant. So where any land or water upon, over or from which any easement has been enjoyed. आपने कोई भी easement enjoy की है किसी भी land के ऊपर, या कोई भी एक water course है उसके ऊपर, ठीक है, you have enjoyed it, and वो आपने कैसे enjoy की है, that it has been derived or held under or by virtue of any interest for life in terms of years exceeding 3 years from the granting thereof, या तो फॉर लाइफ एंजॉय कर रहे थे आप, या 3 साल से ज्यादा की आपको ग्रांट मिली हुई। The time of the enjoyment of such easement during the continuance of such interest or the term shall be excluded in the computation of the 20 years time period in case the claim is within 3 years next after the determination of the said such interest or the term resisted by the person entitled on such determination to the said land or water. So what are we trying to say? Now imagine a situation, जैसे there is one person A who is enjoying the right over this land, मतलब easement enjoy कर रहा है वो इस land के ऊपर या इस water course के ऊपर, ठीक है, easement enjoy कर रहा है, but easement किस basis के ऊपर enjoy कर रहा है? उसके पास एक grant है, उसको grant मिली हुई है to enjoy this easement, और वो grant जो है वो 3 साल से ज्यादा है, ठीक है, दिस इज वन। दूसरा, या ए जो है वो इस प्रॉपर्टी का लाइफ इंटरेस्ट होल्डर है, मतलब वो ये राइट ऑफ ईजमेंट, वो लैंड के ऊपर अपना ईजमेंट्री राइट या वाटर के ऊपर अपना ईजमेंट्री राइट इसीलिए इंजॉय कर रहा है बिकॉज या तो उसके पास ग्रांट है या उसको ये प्रॉपर्टी मिली थी फॉर लाइफ। फॉर लाइफ मतलब ही कैन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी, जैसे भी उस प्रॉपर्टी को यूज करना है वो एंजॉय कर सकता है, एंड देन आफ्टर दैट आफ्टर हिज डेथ द प्रॉपर्टी इज गोइंग टू गो बैक टू द रिवर्शन। तो अगर ऐसा है, ए ईजमेंट एंजॉय कर रहा है इन दो सिचुएशन में, एक तो ग्रांट है 3 साल से ऊपर, या उसके पास जो है वो एक लाइफ इंटरेस्ट है। अब दोनों सिनेरियो के अंदर नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग इज द टाइम ऑफ सच एंजॉयमेंट, 3 साल से ऊपर या उसका जो लाइफ इंटरेस्ट है, it shall be excluded in the computation of the period of 20 years, because 20 years जब हो जाते हैं तो हम कहते हैं then you acquire the right by way of prescription in case the claim is, तो हम कब इसको exclude करेंगे? Within 3 years, in case the claim is made within 3 years next after the determination of such interest or the term which is resisted by the person of such interest or the term resisted by the person entitled on such determination to the said land or water. Okay, so what are we saying? कि आप suppose यहाँ पे throughout your life आप यहाँ पे
50 साल तक जो थे अपनी लाइफ आप जिए और आपने ये राइट एक्वायर कर लिया, ठीक है, बट देन देर इज अ रिवर्जनर ऑल्सो, ठीक है, जो वेट कर रहा है कि एक ही डेथ हो और प्रॉपर्टी उसके पास, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर 50 साल तक थे, ठीक है, तो रिवर्जनर भी कुछ नहीं कर सकता है वहां पे, क्योंकि रिवर्जनर जो है वो आपको रेजिस्ट कर ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर होल्डिंग द प्रॉपर्टी एज अ लाइफ इंटरेस्ट होल्डर, ठीक है, या आपके पास ग्रांट है 3 साल से ऊपर, तो 3 साल से ऊपर मतलब कितना भी टाइम की ग्रांट हो सकती है। अल्टीमेटली जो रिवर्जनर है वो बेचारा परेशान बैठा है कि ऐसे तो अगर 20 साल हो जाएंगे तो देन यू आर गोइंग टू एक्वायर द एब्सोल्यूट राइट ऑफ ईजमेंट, क्योंकि सेक्शन 25 अभी आप पढ़ के आए हैं क्या, कि ईजमेंट्री राइट अगर 20 साल से ऊपर हो जाए और बाई चांस अगर रिवर्जनर आपको डिस्टर्ब करे और आपने सूट फाइल कर दिया तो फिर तो वो आपका एब्सोल्यूट और इनडिफिसिबल बन जाएगा, तो रिवर्जनर बेचारा परेशान। तो ये जो सेक्शन है आपका, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिवर्जनर, कि रिवर्जनर के अगेंस्ट आप राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आपने एज ए लाइफ इंटरेस्ट होल्डर जो है वो टाइम बिताया है उस प्रॉपर्टी का, चाहे 50 ईयर्स चाहे 60 ईयर्स, या ग्रांट जितना भी टाइम उस प्रॉपर्टी पे बिताया है, वो टाइम पीरियड सारा ही कैंसल हो जाएगा। कब? अगर इस रिवर्जन ने सूट फाइल किया विद इन 3 इयर्स, रिवर्जनर ने सपोज सूट फाइल कर दिया विद इन 3 इयर्स, कब से? जब आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो राइट खत्म हो गया था, मतलब ग्रांट खत्म हो गई थी, योर इंटरेस्ट हैज टर्मिनेटेड, तो अब रिवर्जनर ही फाइल करेगा ना। या सपोज ये जो लाइफ इंटरेस्ट होल्डर है उसकी डेथ हो गई, अब रिवर्जनर को उसके एलआर से प्रॉपर्टी वापस चाहिए, तो ही मस्ट फाइल अ सूट विद इन द पीरियड ऑफ 3 इयर्स इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड दिस टाइम पीरियड which is spent by these persons on that property, so that ये लोग कभी भी अपनी easementary right को absolute या indefeasible ना बना, ठीक है। I read this again now. So what they are saying last में, the time of the enjoyment of such easement during the continuance of such interest, grant वाला और life interest, or the term shall be excluded in the computation of the period of 20 years in the case the claim is within 3 years next after the determination of such interest or the term which is resisted by the person entitled on such determination to the said land or ठीक हो गया। So this is 25 and 26. Now we are moving on to section 27. Section 27 जो है, this deals with an very important right, that is कि basically क्या है, यहाँ पे आप अपना एक right acquire करते हैं, right acquire just okay. Now section 27 की जब हम बात करते हैं, let's see this. This is an exception. Why do we say that this is an exception? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट जैसे कि हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक बेसिक रूल पढ़ते हैं कि लिमिटेशन जो है वो एक हमेशा रेमेडी को खत्म करता है, वो कभी भी राइट को खत्म नहीं करता है। बट जैसे भी रीड सेक्शन 27 तो हमें पता चलता है कि सेक्शन जो 27 है, दिस इज अ काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन, राइट। सेक्शन 27 का काम क्या है? सेक्शन 27 कहता है कि जब आप सपोज पोजेशन के लिए जैसे ही आपने सूट फाइल किया और अगर आप लिमिटेशन पीरियड से बाहर हैं, मतलब सबसे पहले यू हैव फाइल्ड अ सूट फॉर पोजेशन, सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज, और आप अपने लिमिटेशन से बाहर हैं, टाइम पीरियड आपने वो खत्म कर दिया, तो देन द अदर पर्सन एक्वायर्स राइट, बेटर राइट, तो देन यू लूज द प्रॉपर्टी, मतलब रेमेडी तो गई क्योंकि आप लिमिटेशन से बाहर आ रहे, बट आपका राइट भी चला जाए, because the other person is going to acquire the right by way of adverse possession. Now let's see extinguishment of the right to property. After determination, yeah, at the determination of the period hereby limited to any person for instituting the suit for possession. कह रहे हैं कि हमने जो लिमिटेशन एक्ट के अंदर किसी पर्सन का राइट लिमिट, आई मीन उसका जो है वो लिमिटेशन पीरियड जो है वो हमने सेट किया है, दैट लिमिटेशन पीरियड कितना होगा? सूट फॉर पोजेशन, सूट फॉर पोजेशन अगर आपको सेक्शन 5 याद आएगा तो उसमें हमने किया है आर्टिकल 64 एंड वी हैव डन आर्टिकल 65,
तो ये हम सूट फाइल करते हैं 5 के अंदर। तो सेक्शन 5 क्या कहता है कि अगर तो आपका सूट बेस्ड है आर्टिकल 64 के साथ, दैट अगर तो आपका सूट बेस्ड है ऑन द प्रीवियस पोजेशन, देन यू हैव 12 years फ्रॉम द डेट ऑफ दिस पोजेशन। Article 65 कहता है if your suit is based upon some kind of entitlement that is proprietary or possessory, then you have 12 years from the other person, from the date when the other person possession has become personal. तो आर्टिकल 64 65 एक तरीके से 12 साल का टाइम पीरियड आपको लिमिट करता है व्हेन यू फाइल अ सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन लेनी। ठीक है, तो वो एक आपका टाइम पीरियड है टू गेट बैक द पोजेशन ऑफ द। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि जब ये राइट आपका खत्म हो गया, ठीक है, it has expired, that means you cannot now go to the court, limitation period expire होंगे, but उसके साथ साथ क्या होगा, his right to such property shall also be extinguished। साथ में क्या होगा, उसका वो right होगा to get the property that is also extinguished। तो इसको हम बोलते हैं adverse possession। adverse possession जो है, this is something that is based upon a concept कि अगर कोई person आपकी property के ऊपर rights exercise कर रहा था contra distinction to you and you have not taken an action for a period of 12 years or more, then that person's possession cannot be disturbed, his possession is protected। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं इसके साथ सेक्शन 5 and section 6 of SRA, because these deals with recovery of possession of immovable property। Let's see this. Now imagine a situation that there is one person who has filed, yeah. So imagine a person that there is one person A. He is the owner of the property and B के पास इसकी possession है property। तो ये एक घर है जिसका ओनर A है, बट पोजेशन किसके पास है, B के पास। B के पास ये पोजेशन कैसे आई कि B ने जो है वो ओनर को डिस्पोजेस कर दिया था एंड ओनर वो स्टेइंग अब्रॉड और बी यहाँ पे जो है वो रहना शुरू कर दिया। तो इनिशियली ही वाज अ ट्रेसपासर, इमेजिन, बट ही वाज नाउ ही इज इन द प्रॉपर्टी। अब उसको प्रॉपर्टी में बैठे बैठे जो है वो 15 साल हो चुके हैं, इज इन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ओनर को पता था दैट दिस इज समथिंग that B is exercising the rights against him, तो मतलब ओनर को पता था, so he had knowledge, सबसे ज्यादा important नॉलेज किस चीज की, that B's rights are adverse। दूसरा, A ने कभी भी B की पोजेशन को डिस्टर्ब नहीं किया, there is no disturbance। B ने पीसफुली वो पोजेशन को एंजॉय किया है 12 साल से होकर 15 साल से। A ने कभी भी सूट ही नहीं फाइल किया 5 के अंदर टू गेट बैक हिज प्रॉपर्टी, या 6 के अंदर ही विद इन 6 months अगर वो कर देता जैसे ही डिस्पोजेस, वो तो चलो 6 महीने तो वैसे ही जल्दी बीत गए, बट 12 years का भी टाइम जो है वो उसने वेस्ट कर कभी नहीं किया, उसको डिस्टर्ब करने की भी कोशिश नहीं की। बी ने ये पोजेशन जो है वो इंजॉय की है ओपनली, हाइड भी नहीं किया है इस पोजेशन को कभी भी किसी से। ठीक है, तो अब बी के राइट्स क्या है, सबसे पहले हम ए के पास चलते हैं। ए पहली बात तो क्योंकि 12 साल हो चुके हैं, उससे ऊपर हो चुके हैं, आर्टिकल 64 आर्टिकल 65, सो ही कैन नॉट फाइल अ सूट, इज बार्ड, हिज सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, राइट। अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी जो है इस एडवर्स पोजेशन को अब, बिकॉज देयर इज अ रीसेंट चेंज इन द लॉ, और अब इसको वो एज अ शील्ड, मतलब अपनी पोजेशन तो प्रोटेक्ट कर ही सकता है, बट एज अ स्वॉर्ड ऑल्सो भी यूज कर सकता है। तो मतलब एज अ ग्राउंड ऑफ अटैक एंड अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस दोनों यूज कर सकता है। जब हम बात करते हैं ग्राउंड ऑफ डिफेंस और ग्राउंड ऑफ अटैक, इसका मतलब क्या है कि मतलब ए बी अपनी पोजेशन को ए से तो प्रोटेक्ट कर ही सकता है, दूसरा भी जनरल किसी और लोगों के अगेंस्ट भी अपनी पोजेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है, राइट। और ये क्या कर सकता है, he can also file a suit for declaration, मतलब he can use it as a sword। ये जाके कह सकता है कोर्ट में कि मुझे, क्योंकि I am here on this property for a period of 12 years or more, so the court should declare him the owner of this, क्योंकि उसने अपना टाइटल जो है वो कंप्लीट,
वो टाइम पीरियड 12 years का था, उसके बियॉन्ड जाके उसने अपना टाइटल को परफेक्ट कर लिया है. सो अंडर सेक्शन 27 सूट फॉर मतलब सामने जैसे वो सेक्शन 34 डिक्लेरेटरी डिग्री अगर लेना चाहता है तो ही कैन डिक्लेयर हिमसेल्फ द owner of the property by proving the adverse possession for a period of 12 years or more, and then he can claim title. So that is why I'm saying that he can use this as a shield, as a sword. और ये अब जो हमारा मेजर लॉ के अंदर चेंज आया था, दैट वाज इन द लैंडमार्क केस ऑफ रविंदर कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत. रविंदर कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत, जिसमें कोर्ट ने कह दिया कि एडवर्स पोजेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप जब भी आपको कोई इस प्रॉपर्टी से हटाने आएगा तो आप उसको सिर्फ एज अ डिफेंस यूज कर सकते हैं. अब एडवर्स पोजेशन जो 12 साल से ऊपर चली गई है, क्योंकि आप राइट एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि ए का तो राइट ही खत्म हो गया, सेक्शन 27 ने बताया. So that means you can also use this as a sword and you can claim the title over the property against the owner. तो बाय चांस आपको टाइटल अपना जो है वो प्रूव करना है तो आप सेक्शन 34 के अंदर बाय बीइंग इन पोजेशन वो क्लेम कर सकते हैं. सेक्शन 34 ऑफ एसआरए डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर दो, दैट डिक्लेयर मी द ओनर ऑफ द, ऐसा भी हो सकता है. और बाय चांस अगर ए ने आपको, ट्रू ओनर ने आपको आके अब 12 साल से जब ऊपर टाइम हो गया डिस्पोजेस कर दिया, तो आप टाइटल भी क्लेम कर सकते हो. सो यू कैन गो अंडर सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65 टू क्लेम योर टाइटल, बिकॉज आपका टाइटल जो है वो परफेक्ट हो चुका. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. बस इतना है कि जो सेक्शन 27 है और सेक्शन 5 एंड 6 है, जब आप इनको सबको इकट्ठे पढ़ते हैं तो द थिंग्स गेट इजी और ये दिमाग में भी रहता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस टॉपिक्स में, प्लीज जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट एंड आई डेफिनेटली रिजॉल्व दोस डाउट्स. और दूसरा, किसी की रिक्वेस्ट आई थी that I should be making the videos on the Companies Act. So I would like to request you all that please be specific. किस टॉपिक के ऊपर आप वो वीडियो चाहते हैं, जनरल चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है. And after this, one more thing that iske baad, because I was receiving the request that I should be taking up the questions on res judicata and res sub judice along with section 13 and 14, because res judicata भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम जितने मर्जी क्वेश्चंस कर लें, एक बार आई मीन जितना मर्जी कंटेंट रीड कर लें, बट स्टिल वी फील दैट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद proposition based questions. So yes, my next video will be on res judicata and res sub judice, which will be shared in this week. Okay. Thank you so much, everyone, and have a great day ahead. Very soon. Bye.